Assalamualaikum everyone, I'm Hadiya and I welcome you all to the second episode of Lex Unity, which is all about mooting, how to prepare and how to succeed. For this we have with us Hadiya Shahid Khan. She's a law student from NAST University, Islamabad. She's just not a law student but an extraordinary mooter and an entrepreneur. Assalamualaikum Hadiya. Walaikum assalam. कैसी हैं आप? Alhamdulillah. How are you? I'm good. And thank you so much for the exceptional introduction, by the way. To kick things off, could you please share what inspired you to pursue law as a career? Yeah, there were like a lot of things, but if I have to put it down in like one statement, that was to learn and to know. Like, and if I break it down and take you to like, okay, what was the backstory? So that was all about okay, I always had inspirations. Like, I used to read Iqbal. I grew up reading that. I was always in debates and stuff, or I was always into social issues. लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आते थे. I remember कि there was this time जब initially वो आफिया सिद्दीकी वाली सारी situation चल रही थी. I once had a newspaper और उसमें 2-4-6 बहुत बड़े articles लिखे हुए जो मैंने पूरे पढ़े और मुझे literally उनका कुछ समझ नहीं आया. So I just like placed them inside. मैंने कुछ internet पे जाके चीज़ें पढ़ी लेकिन they were obviously that was complete contradiction with what I was reading in a national context and what was coming from the international context जो narrative होता है. So then I asked my Abba. I always used to like have conversations with him, socio-political ones, and he used to teach me a lot. तो जो मैं पढ़ा करती थी और वो जो मुझे बताया करते थे कि जो किताबों में ये जो natural historical context में होता है, that always used to come in contradiction. तो जो question था ना वो ये था कि क्या है actual क्या है? I wanted to self-learn it. और वो सब कहीं ना कहीं root back करता था या jot down करके connect करता था from law. The legal perspective कि UN ने ये किया, फलानी जगह ये बिल पास हुआ, ऐसे ये चीज़ हुई, ये चीज़ इस जगह पे इस कोर्ट ने ये कर दिया. तो for that I think वो मैं बहुत inquisitive हो गई थी about law. And 10th onwards I switched my subjects in intermediate. There was a lot of family pressure as well कि क्या करना है वकालत करके law ही ये वो सारी चीज़ें engineering computer medical वाला बच्चा और जाके अब इसने वकीलों में बैठना है ये होगा वो. And I was like yes I have to do that because I want to do it. So alhamdulillah it went well. NAST fortunately 2020 में start हुआ and we got in. I am from the pioneer batch as well, so that's how it is. Like if I sum it up. Like अब जहाँ चाहती थी वहाँ आज आप हैं. Yes, alhamdulillah. ठीक है. तो what about mooting? Mooting में कैसे interest develop हुआ? यार I didn't know anything about mooting. मुझे नहीं पता था mooting exist भी करती है legal field में before getting in NAST. और फिर जब हमारा पहला साल was the COVID year because it was 2020. Then 2021 में जब हमारी face to face classes start हुई तो our sirs they basically started to tell us about कि आपने mooting है ये चीज़, you have to get familiarized with it. And then उन्होंने हमें जो चीज़ जो idea sell किया था या जो चीज़ हमें pitch in की थी was the idea of कि you get the chance to go and do it internationally. You get a chance to represent your country and do like things. Starting में international. उन्होंने हमें direct बताया था कि HDMC, which is Henry Duna Moot Court Competition, उसके थ्रू अगर आप एशिया पैसिफिक में आ जाते हैं और उसके बाद जो फाइनल्स होते हैं वो उसके हांगकांग में होते हैं और रीजनल्स जो होते हैं वो उसके नेपाल या इंडिया पाकिस्तान इस तरह के कंट्रीज में होते हैं. तो हमें ऑलरेडी वो आइडिया सेल हो चुका था कि इफ़ वी आर गोना विन द नेशनल्स, इफ़ वी गेट इन टॉप 12 फर्स्ट रिटन्स क्लियर करके उसके बाद हम जो हैं वो वी गेट अ चांस टू गो एंड डू थिंग्स इंटरनेशनली. तो वही वाज द सेलिंग पॉइंट आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस. एंड उसके बाद हम लोगों को था कि ओके फिर इंट्रा हुआ नास्ट में. उसके बाद इंट्रा में खैर डोंट आस्क फॉर आवर टीम रैंकिंग्स बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इन HDMC एंड देन विज एंड वो सब चीज़ फिर वो डिपार्टमेंट के थ्रू आती रहती थी चीज़ें एंड वी यूज्ड टू अप्लाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत मदद की एंड देयर वर दुआज एज वेल सो वी गेट इन. तो डिफिकल्ट नहीं हुआ लाइक एक चीज़ प्रैक्टिस में होती है ना तो वो तब प्रैक्टिस के बाद आप कोई चीज़ करते हो तो फिर एक अलग उसमें डेवलपमेंट आपको नजर आती है. लेकिन एकदम लाइक हेनरी डूना में जाना और नेशनल लेवल पे उसको करना नहीं. उससे पहले इंट्रा हुआ था हमारा जो नास्ट का इंट्रा कॉम्पिटिशन था. यस उसमें लिया था बट आवर टीम रैंकिंग वाज नॉट गुड एट ऑल. लेकिन उसके बाद बट दैट्स नॉट इवन अ थिंग बिकॉज आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड इज द ह्यूज थिंग. या सो उसके बाद HDMC वेंट रियली गुड एंड प्रैक्टिस देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इट्स जस्ट नॉट कि आप खाली कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं. उससे पहले जो 4 महीने या 6 मंथ्स या 5 मंथ्स ये जो पूरा एक टाइम पीरियड है इट्स अ लॉट. और उसमें जितनी रिगरसली आपको ट्रेन करते हैं वो लेट इट बी लाइक अबाउट लीगल ड्राफ्टिंग, लेट इट बी अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द प्लीडिंग्स एवरीथिंग. तो वो फिर ऑल टुगेदर आप इतना प्रैक्टिस में होते हो कि उस दिन आपको फील ही नहीं होता, आपको पता होता है ये करना है. सो लाइक इट्स देयर इज लाइक वेरी लेस प्रेशर आई थिंक. अच्छा यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा मूटिंग से हटूंगी इस बारे में कि वो इस तरह कि लाइक
लॉ स्टूडेंट तो आप हैं ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक मूटर भी हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके साथ यू एन एंटरप्रेन्योर टू, तो अपने ब्रांड HFK को स्टार्ट करना, उसकी क्या स्टोरी है? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपने उसका कैसे इनिशिएट लिया? यार, with Love HFK is like a baby, a small brainchild that we working on still, and inshallah it will go upwards and onwards, inshallah. It started back in 2021, and if I break down the name, so it's with Love HFK, which is Hadiya, my name, Fatma, my amma's name, and Kashmala, my sister's name. Okay. So it's all together a very feminine, very khawateen, female-oriented thing. That's the most significant thing about it. Yes. So I was only 19 when we worked on it. और ना आई रिमेंबर कि 2020 का एंड था या 21 का स्टार्ट था. आई एक्चुअली बॉट अ जर्नल, PVO inspired me, हम ना रज़ाज़वान, and I wrote कि I'll have my own business. उस वक्त कुछ नहीं पता था वो किस चीज़ का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, nothing. It was just कि होगा, that's it. और उसके बाद एक दिन I remember I was just like working. I was thinking of कि मैं मतलब I need to do something, because मैं क्या करती थी कि shoots में मैं हमेशा से थी. I was into shoots and stuff. Since the time I got myself a camera, I used to do my sister's makeup and take her photos. I used to do other shoots as well. तो मैं करती रहती थी. अच्छा, photography भी करती थी मैं, yes. And अभी भी मैं कभी-कभी करती. There were like wedding shoots जो कि मुझे थे offer, लेकिन I never used to do because my abba was not very inclined towards it. लेकिन I was always intrigued toward this side. तो फिर हमने कहा कि why not कि I do something like that. फिर जो पाकिस्तान में I have always been into like contemporary modest wear, तो मुझे लगा था कि there is a lot of like a gap in it, considering the fact कि हम एक already Muslim dominated country हैं, और we got a chance to go Turkey. और वहाँ पे जो मैंने देखा ना कि यार modest fashion और इतना extraordinary, मतलब that was really nice. तो मैंने कहा कि यार we need to like bring that here as well. तो आई थिंक वो आइडिया मेरे दिमाग में वहाँ से आया, और कुछ ज़िंदगी की अपनी चीज़ें थी कि आई वाज लाइक ड्राइव थी कि नीड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. तो आई टॉक टू माई सिस्टर द अदर डे कि दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन माई हैंड, इन माई माइंड, सॉरी. एंड देन शी वाज ऑल्सो लाइक कि हाँ, लेट्स डू इट. सो वी हैड अ वेरी स्मॉल बजट. इनिशियली वी हैड अ वेरी स्मॉल बजट, एंड उससे हमने कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स की. आई रिमेंबर आई बॉट माई सेल्फ फर्स्ट एवर लेंस, दैट वाज अ पोर्ट्रेट लेंस, छोटा सा. अभी भी मैं वो यूज़ करती हूँ. एंड देन हमने थोड़ा बहुत पैकेजिंग पे काम किया. वी वांटेड कि ओके कस्टमर्स को वी नीड टू ब्रिंग इन द एक्सपीरियंस. कुछ मेरे अपने बायर्स थे. आई टुक द फोटोज, वी डिड द शूट्स टुगेदर एंड वी पोस्टेड दैट अप, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ऑर्डर्स भी आ गए. सो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स. एंड देन बस अब वो चलता रहता है, कभी रुकता है, कभी चलता है. कंसिस्टेंसी इज द की, बट आई होप दैट कम्स इन मोर. बैलेंसिंग लॉ स्कूल एंड लाइक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, और उसके साथ आपने एक ब्रांड भी शुरू कर दिया. टाइम मैनेजमेंट कैसे की? I don't think so I'm very good at time management, because I do need a push most of the time, जो कि मेरी बहन मुझे देती है अब after calling me कि तुमने ये चीज़ अभी तक पोस्ट नहीं की, या ये अभी तक नहीं हुआ, ये चेक करो, रिप्लाई करो. एंड आई लाइक अच्छा ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ना देनी है. लेकिन आई थिंक नाउ आई एम वर्किंग मोर ऑन माई टाइम मैनेजमेंट आफ्टर knowing कि उसके repercussions क्या हो सकते हैं. I was not really good at it, but now I'm getting better. For past month I've been like working on my morning routine, schedules and everything. लेकिन उससे पहले यही होता था कि I used to miss out on a few things. मूट कर रही हूँ तो GPA थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बिजनेस रुका हुआ है, बिजनेस चल रहा है तो मूट में लेट पहुँच, मतलब इस तरह की चीज़ें. बट अल्हम्दुलिल्लाह that's well sorted now. लेकिन हो जाता है in the end. I think there was a time I was doing all three of them as well. लेकिन फिर you miss out on either of them. So you have to balance. I think कि आपने सही टाइम पे सही चीज़ को बैलेंस करना है कि इस वक्त प्रायोरिटाइज क्या करना है. बैलेंस इस तरह करेंगे आप, क्या प्रायोरिटाइज करेंगे. व्हेन इट्स नीडेड फॉर द मूड, मैं बिजनेस थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ. आई एम फोकस मोर ऑन दैट. फिर मेरी बहन टेक ओवर द अदर पार्ट ऑफ इट. एंड शी इज आल्सो स्टूडेंट. No, she's married. She's in Italy. She's not here as well. Yeah, but the social aspect, social media वाला part, she do that. So like entrepreneurship adopt करना, like एक हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को फेस करना, और फिर वो सारे लाइक उससे ऐसा क्या की लेसन लर्निंग, मतलब ऐसा क्या की लेसन जो था ना वो आप देना चाहोगे कि लाइक मैंने इस टाइम में ये सीखा. एक तो टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली आप बता रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि बीइंग इन्वॉल्व इनटू मेनी थिंग्स, आप एक चीज़ को उठाते हो. Yes. यार आई थिंक टू बी प्रिसाइज, टू बी स्पेसिफिक, बिजनेस सब कहते हैं कि यू डू इट विद लाइक फाइनेंसेस एंड स्टाफ, आपको बहुत पैसा चाहिए. मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा जो चीज़ आपको चाहिए ना वो है नर्व्स,
और वो है इमोशनल स्टेबिलिटी दैट कम्स अलोंग, वो पैसेज के साथ, मतलब इट कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक पेशेंस, यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक कंसिस्टेंसी, कि आपको देयर आर थिंग्स, यू प्लान अ थिंग कि यार मैं चाहता हूँ इस टाइम पे ये शूट हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन देन देयर इज अनदर टाइम फ्रेम जिससे आपका कोई आपकी प्लानिंग का ताल्लुक नहीं है, एंड इट्स हैपनिंग simultaneously, you know, you plan and then Allah Ta'ala plans. Exactly. And obviously what is planned well is better than what we plan. लेकिन in the end of the day उसको जब आपने कोप अप करना होता है ना एक certain situation में, I think that requires a lot of nerves. हमने अगर एक चीज़ प्लान की है, एक आउटफिट प्लान किया है, you send it to a tailor, you want कि अच्छा ठीक है ये इस तरह करके बंद आए, सैम्पलिंग हुई, उसमें कितनी चीज़ें ख़राब हो गई, then you have to accept it as it is. Patience because आपने इन्वेस्ट किया होता है, आपने टाइम पैसा हर चीज़ इन्वेस्ट की होती है, फिर आप कहते हो कि ये क्या हुआ है, and then you like okay we'll like do something else, या फिर उसी चीज़ को build up करना. I think वो जो एक पार्ट है ना, that's like a little thing that teaches you a lot, मतलब considerably a lot, वो आपको बहुत सिखाता है. And उसके अलावा another thing is कि I think जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रगल्स हैं वो तो कम्प्लीटली ना थर्ड वर्ल्ड किस्म के मसाइल हैं, यू कांट इवन थिंक ऑफ दैम. Exactly. क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टॉक, लाइक द क्लोथ, हम वी डोंट प्रोड्यूस आवर ओन फैब्रिक, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोवाइडर्स, ऑन द सप्लायर्स. Exactly. तो जब हमें वहाँ से कपड़ा मिल रहा होता है तो उसमें अब कितने मसले हैं कि एक दफ़ा आपको ये कलर मिला, अगली दफ़ा वो ख़त्म हो गया, बाजी हम ये वहाँ से, ये हम वहाँ से, और ये हम वहाँ से मंगवाते हैं. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान में ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो कितना अनअकाउंटेबल है, अनचेक्ड है, कि आप मंगवाएंगे कुछ और, मिलेगा कुछ और, एंड वो फिर आपको डिसएसोसिएट कर देंगे लोग, द सप्लायर्स, दे वोंट इवन पिक अप द कॉल्स एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक वो सारी चीज़ें ऑल टुगेदर जो है ना आपको बहुत सिखाती हैं. सेम गोज फॉर द पैकेजिंग एंड स्टफ, के कभी क्वालिटी आपको कुछ और चाहिए होती है, गेट समथिंग एल्स, एंड देन द एक्सेप्टेंस, एंड देन बिल्डिंग अपॉन द सेम थिंग. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नर्व्स, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर ओन माइंड एंड नॉट गिविंग अप. You can't be emotional about things. आप चीज़ों को जज्बाती होकर अगर कहेंगे ना, okay, like you know, no, you can't, you don't have the option to. That's really inspiring. Like हर चीज़ में इन्वॉल्व होके, being involved into law school and moot court competitions, और साथ आप एक अपना like business empire करना, काफ़ी difficulties होती हैं शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आगे भी आसानी करे. I hope Now so. coming towards the topic, for our listeners who may not know about mooting, ठीक है, what mooting is and ये क्या एक essential element hold करती है in the life of a law student. अच्छा, so mooting, moot court को अगर moot court competition, if I break it down, so in very simple words, it's basically a simulation of an actual courtroom, but not of our district courts. It's more of what happens in our high courts. हमारे जो higher courts हैं वो इतना properly proceed करते हैं जितना proper आपको एक moot सिखाता है. So moot court competition is basically a learning process, जिसमें आपको you get a case, you then prepare for it in the written form, which is legal drafting, and then you prepare for the orals, which is like oral pleadings. तो आप वो सारी चीज़ें ऑल टुगेदर जो कि आपने कल को एक कोर्ट रूम में करनी है, वो आप पहले एक बहुत छोटे लेवल पे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे करते हैं, and that's basically what a moot court. I think that's the essential element. Yeah. Obviously आप अपनी डिग्री को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसको प्रैक्टिस साथ इसी तरह कर सकते हैं being in a law student. Yeah. ठीक है, तो पाकिस्तान में रह के moot court competitions के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? यार स्टैंडर्ड्स इन अ सेंस ये हैं कि लाइक I mean structure क्या है? Okay, like, structure. What's the structure कि of how like, to moot get court in a moot and competitions? everything. Yes. Okay. So for that I think you really need to keep an eye सबसे पहले of के where these moots are happening, because एक national level पे हो रहे होते हैं, and then there are those international moot court competitions as well, जिसके लिए you then try to search for some like sponsorships. Yeah. तो national level पे तो you what happens is कि आपके department को emails आ रही होती हैं usually. अगर डिपार्टमेंट कनेक्टेड नहीं है, देन योर ओन नेटवर्क्स या जो लीगल स्कूल के पेजेस होते हैं, लॉ स्कूल के पेजेस होते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम वगैरह, व्हेन यू कीप एन आई ऑन देम एंड व्हेन यू कीप अ चेक ऑन देम, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मूट हो रहा है किसी जगह, देन यू अप्लाई, देन द टीम सिलेक्शन, कॉन्फर्मेशन, टीम रजिस्ट्रेशन, टीम साइन अप हो जाती है, तो उसके बाद यू स्टार्ट टू प्रिपेयर, आपको फिर वो मेमो रिलीज होता है, प्रॉब्लम के बाद आपको टीम कोड्स वगैरह मिल जाते हैं, दैट्स यूजुअली कॉन्फिडेंशियल, हर टीम को मिलते हैं, एंड देन कितना गैप होता है? Like that depends like institute वेरी करता है, और वो आपको मेमो मिलने के बाद फिर आप यू स्टार्ट टू लाइक प्रिपेयर फॉर द रिटन्स. पहले आपने रिटन सबमिशंस करानी होती हैं, रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ दोनों साइड के मेमोस. What about team selection?
अभी ये पहले आप बता देना मेमोरी टीम सिलेक्शन का कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है, वो हर डिपार्टमेंट का अलग होता है। जैसे नास्ट की अलग क्राइटेरिया होगा टू सिलेक्ट अ टीम विद इन डिपार्टमेंट, और वो फिर अपनी टीम भेजेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। बहरिया का अलग, इस्लामिक, QAU, सब यूनिवर्सिटीज का यूनिवर्सिटीज आपकी टीम्स बनाते हैं या आप लोग खुद बनाते हो? ये दोनों ऑप्शंस होती हैं। हमारे नास्ट में ये होता है कि टीम्स वैसे खुद भी जाना प्रेफर करती हैं, बट ऑब्वियसली दे वांट कि उनको डिपार्टमेंट ओन करे, दे वांट द सेंस ऑफ एसोसिएशन टू कम अलोंग। तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में तो इसी तरह होता है कि फर्स्ट व्हेन वी गेट एन ईमेल, इट गेट सर्कुलेटेड कि जो स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, दे शुड अप्लाई। So then they apply, और वो अप्लाई करने के बाद usually we have interviews, some days we don't have interviews, that depends. Interviews के बाद जो है वो जब selection हो जाती है टीम की, then they make sure कि it's a team that can work well together as well. Obviously they will be representing them and the institution as well, so credibility double हो जाती है, and वो responsibility भी I think at the same time. Let's start with the steps, like इनको prepare करने का moot court competitions का, like I guess first is the drafting of memo. No. सबसे पहले तो जब आपकी moot problem रिलीज होती है I think, तो आप अपनी moot problem को रीड करेंगे, और मैं कहूँगी कि रीड करेंगे, ठीक है? You have to read it like a lot, and this is the key. हम लोग अभी हमारी भी जो प्रॉब्लम आती है, तो whosoever is coaching us, वो हमें जो सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं कि बस मूट प्रॉब्लम को आप पढ़ें और बहुत दफ़ा पढ़ें। तो फिर रीडिंग इट एंड देन रीडिंग इट लाइक ओवर एंड ओवर अगेन। उसके बाद आप जब प्रॉब्लम से थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाते हैं, तो देन यू मेक सम टाइम लाइन्स आउट ऑफ इट, देन यू डू सम ग्रुप डिस्कशंस, एंड देन उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग अ मेमो। एंड मेमोरियल बेसिकली ये होता है कि जो आपके लीगल सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, यू राइट इट डाउन इन रिटन फॉर्म, एंड इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। आपने प्लेंटिफ की साइड से भी एंड डिफेंडेंट की साइड से भी, प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों साइड से रिटन मेमो सबमिट कराना होता है, बिकॉज आपने प्लीड भी दोनों साइड से करना होता है। सो यू नीड टू नो द केस फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड फिर मेमो राइटिंग के बाद यू प्रिपेयर फॉर द ओरल्स। डायरेक्टली ओरल्स पे आ जाते हैं एकदम आफ्टर द रिटन सबमिशन, उसके बाद आपके ओरल राउंड्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लाइक हाउ टू ड्राफ्ट अ मेमोरियल, और इसके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे? अच्छा, तो मेमोरियल ड्राफ्टिंग इज लाइक अ प्रॉपर time taking process. It takes a lot of you actually, because जो इतनी पूरी rigorous process होता है of legal draft of preparing for a moot, तो उसके अंदर आपकी जो बहुत significant चीज़ होती है उसमें से वो एक आपकी memorandum होती है, जिसके ऊपर आप उस वक्त dependent होते हैं when you're pleading in front of like the judges and you're presenting a case और सही argument चल रहे हैं, so you're relying on your memo as well to some extent. तो आपकी जो पूरी research है, जिसको आप जिस जगह पे सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से execute कर सकते हैं, is your memorial, is your memorandum भी इसको कहते हैं। So उसके अंदर क्या होता है कि you begin with a cover page पे आपने लिख दिया कि okay, this is the title, these are the parties, plaintiff ये है, defendant ये है, you write the date, you write the court in which you are presenting the case, and वो सारी चीज़ लिखने के बाद you then come towards table of contents। फिर आप table of contents का एक पूरा पेज बनाते हैं, then there is this huge index of authorities। फॉर लाइक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स वो 20-30 पेजेस पे एक्सटेंसिव किस्म की अथॉरिटीज़ होती हैं। नेशनल लेवल्स पे इट्स लाइक स्लाइटली लेस, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ अथॉरिटीज़ टू मेक योर मेमो क्रेडिबल वन। उसके बाद आप आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पे। यू ब्रीफली गिव एन ओवरव्यू ऑफ कि अगर आपकी 60 पेजेस की मूट प्रॉब्लम है या 80 की है या 100 की, जितने की है। एनी लिमिट? No. मूट प्रॉब्लम्स जो है वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बड़ी भी होती है, नेशनली थोड़ी सी छोटी भी होती हैं, बट लाइक दैट डिपेंड्स। तो उसके अंदर से फिर आप बिल्कुल 1 या 1.5-2 पेजेस की स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बाद यू कम टू द समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि जो आर्ग्यूमेंट्स आपने रिटन में प्रेजेंट करने हैं उनका लाइक 1 पैराग्राफ फॉर ऑल द इशूज़। उसके बाद यू कम टू arguments advanced, you provide like proper arguments for each and every issue of yours, and उसके बाद you end up with the prayer कि what do you require from the bench या from the court या from the jury, आपको जो भी चीज़ required है, that's called the prayer of relief। तो इस तरह all together आपका जो एक memo है, because when you're speaking for a very limited time, but when you're writing there's a page limit obviously, but that's a lot। तो उसमें you can आराम से put out all the research that you have done। While doing research, how to find the relevant case laws? यार रिसर्च के लिए तो द सोर्सेज आर कि आप सबसे पहले यू रीड अ लॉट, यू गो थ्रू द कमेंट्रीज, यू गो थ्रू द लॉ, देन वाइल गोइंग थ्रू द लॉ आप जो है उनकी एडवाइजरी ओपिनियंस देख रहे होते हैं, सो यू डूइंग अ लॉट।
तो यही चीज़ें प्राइमरी तौर पे आपकी सोर्सेज होती हैं कि आपका केस लॉ है, आप जिन्होंने कोई काम किया हुआ है दैट सर्टेन फील्ड ऑफ लॉ, दे बिकम योर अथॉरिटीज़. एंड सोर्सेज अगर आप वैसे देखें तो इंटरनेशनली तो देयर आर वेबसाइट्स एंड ऑब्वियसली जैसे आर्बिट्रेशन में यूनिलेक्स होती है, उन्होंने हमें दे गिव अस सम अदर साइट्स एज वेल एक्सेस टू देम. लेकिन पाकिस्तान में इफ यू आर वर्किंग से पाकिस्तान लॉ साइड में बहुत सारे केस लॉज हैं. देन देयर पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट एंड लाइक सुप्रीम कोर्ट की जो निकलती है उसमें जो केस लॉज होते हैं. उसके अलावा जो कॉमेंट्रीज हैं हमारे पास हमारे स्टैट्यूट्स की. So I think वो सब चीज़ें are the credible sources and are required as authorities in a memo and orals as well. What kind of legal research and analysis are usually required in this process? यार I think legal research तो obviously that's about law and वो सारी चीज़ें. लेकिन analytical one as well because आपको बाज़ दफ़ा when you're studying a new law और यूजुअली मूड्स जो होते हैं वो इसी तरह के लॉ के बारे में होते हैं जो कि इतने प्रैक्टिस नहीं हो रहे होते. फॉर इंस्टेंस हमारा जो हेनरी रूना था दैट वाज अबाउट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ. तो वो सब चीज़ें हमारे कॉन्टेक्स्ट में वी डोंट लाइक आर वेरी फेमिलियर विद देम. देन अगेन विज वाज अबाउट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड उसमें ये सब चीज़ें थी. तो उसमें ये सीन होता है कि व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जो आपकी रिसर्च है आप करते हो तो आपको इतनी फेमिलियर नहीं लग रही होती. सो आई थिंक दैट शुड बी मोर कोहेरेंट टू द रिक्वायर्ड थिंग्स. आई थिंक कि आपकी जो मूड प्रॉब्लम में चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अलाइन कर रही हैं आपकी रिसर्च से या नहीं. सो एनालिटिकल कोहेरेंट अलाइंड रिसर्च आई कैन से. Any strategies or techniques you want to share that worked for you, like जब आप प्रिपेयर कर रहे थे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए? मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए यू नीड अ गुड टीम सबसे पहले. और जो टीम के अंदर की कोहेरेंस है ना दैट डज काउंट इन लाइक अ लॉट. ठीक है, जो एक टीम है, अगर टीम की केमिस्ट्री नहीं है तो आप आपस में यू विल जस्ट बी प्लेइंग विद योर ओन इनसिक्योरिटीज एंड दैट्स द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू अ टीम. तो सबसे पहले एक टीम आपकी जो है ना वो अगर बहुत टॉप नॉच किस्म की बन गई है, एन एमैल्गमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड लाइक गुड स्पीकर्स, गुड रिसर्चर्स, ये एक सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद अ टीम स्ट्रैटेजी कि आपने प्लान किया हो कि इस सर्टन टाइम में आपने इतनी दफ़ा अपना आपने अपनी मूड प्रॉब्लम रीड करनी है एंड अपनी मूड प्रॉब्लम रीड करने के बाद आपने जो है वो कितनी दफ़ा उसको लाइक आपस में डिस्कस करना है, कब डिस्कस करना है. देन यू हैव अ टाइम लाइन ऑफ योर ओन कि आपने दिस इज़ द टाइम योर मेमो शुड बी रिटन, दिस इज़ द टाइम आपने ओरल प्रीडिंग्स की तैयारी शुरू करनी है. सो द टीम स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर एंड योर टाइम लाइन जो कि दैट शुड बी अहेड ऑफ द इवेंट. जो आपको पूरा स्केड्यूल मिलता है इवेंट का, यू शुड वर्क अहेड ऑफ दैट. सो आई थिंक वो जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी ना और एक अच्छी टीम की स्ट्रैटेजी होगी दैट रियली डज काउंट इन. ऑब्वियसली आपस में यूनिटी और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना तो आप वही आगे कन्वे कर सकोगे. दैट शोज यस वो बहुत फर्क पड़ता है. हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राफ्टिंग स्किल्स? अच्छा, तो यार व्हेन यू हैव टू कंसिडर लीगल ड्राफ्टिंग, सो फॉर दैट ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज रीडिंग followed by research, a mixture of both of them. उसके बाद जब आप उस सबको लिख रहे हो ना, so there's this format जो हमें प्रैक्टिस कराया जाता है. It's called an IRAC format, which is issue, rule, applicability and then conclusion. So IRAC जब आप करते हो ना, so that's what we practice while making and formulating arguments as well. तो what we do is कि आप सबसे पहले like you present the issue, you talk about that this is the law, this is the application in the current case and this is the conclusion that's like driven out of it. Or I think for a good legal research आपका जो memo it should be very contextual, very interconnect, वो आपस में interconnected हो, very to the point, clear, ambiguities now. और I think कि it should be not very precise, obviously it's detailed, लेकिन आपकी authorities, I think the authorities they should be very credible, good authorities. और उसके अलावा the final outlook of your memo that does count in as well because I remember when we were making our memos तो हमारी जो coach होती थी she used to check कि whether our brackets, अगर हमारे bracket का data is in italics तो वो italics में होना चाहिए. और हमारा जो बाकी सारा है वो अगर normal font है तो वो font से लेके dot, full stop, comma, she used to check each and everything. छोटी चीजें count हो रही होती हैं. All of that counts in. नेशनली इतना मैटर ना भी करे बट इन इंटरनेशनल मूड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो आई थिंक टू बी वेरी स्पेसिफिकली माइंडफुल अबाउट दैट या कि आपकी मेमो की आउटलुक कैसी होगी. और आपकी अथॉरिटीज़ का इवन एक सीक्वेंस होता है कि आपने ऑथर का नाम लिखा है, फिर आपने पेज नंबर लिखा है, फिर लाइन नंबर, पैरा नंबर, सो दैट शुड बी फॉलोड थ्रू आउट योर मेमो. सो ये सब चीज़ें, ऑल द डिटेल्स ऑल टुगेदर.
How to make your memo impressive? Like, what reflects the extraordinary drafting or research skills in making of memorial? I think an ideal memo will be a very coherent, interconnected, sequenced, a good looking memo जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और जो क्लियर है, जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लाइक कि आपको समझ नहीं आ रही कि लिखा क्या है या क्या कहना चाह रहा है, you know, the other person is not very clear. So I think a clear memo, a sequential one, which is following all the required ingredients, I think is like a good one जो कि आप that you like to read. How to organize a case file? So I think organizing a case file is very important because it's not a very talked about thing, लेकिन it is because आपने 4 महीने 6 या 8 महीने for how much time you worked, आपने वो जो सब तैयारी की होती है, जो research की होती है, it's gonna come out when you're pleading, when you're presenting a case in front of a jury or a bench. तो उस वक्त के लिए आपकी जो एक ऑर्गेनाइज्ड फाइल है ना, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू एंड हाउ आवर कोचेस एक्चुअली कोच्ड अस के प्रिपेयर दीज लाइक ह्यूज फाइल्स, हम प्रॉपर एक फाइल लेके उसमें वी यूज्ड टू ऐड इन आवर मेमो मूट प्रॉब्लम सबसे पहले, एंड देन आफ्टर द मूट प्रॉब्लम वी यूज्ड टू पुट आवर मेमोरियल जो हमने रिटर्न सबमिट कराया होता था, देन वी यूज्ड टू पुट इन ऑल आवर अथॉरिटीज़, एंड उसके अलावा व्हाट वी यूज्ड टू डू कि जो एक गेम चेंजर है इसमें कि we used to have a paper and we used to write the structure of our arguments कि opening statement से start होगा कि may it please the court, should we start, and वो सारी चीज़ें. उसके बाद we used to come towards arguments का structure. अगर कोई opening statement है तो वो ऐड करेंगे. arguments के structure में आपने कि how you gonna come up with all your arguments, prioritize करते हैं आप, and then उसके बाद we used to write the basic conclusion or the prayer. तो हम एक अपना structure भी साथ रखते थे in the left side of our file. And उसके साथ we used to have like सारी authorities, did I mention that? Okay, so even if not, authorities साथ रखना is very important. You did, yes. Okay, कि अगर आपने कोई case law रखा हुआ है तो आपके पास वो case law हो, because judges ask. Sometimes they'll be like, okay, give us the authority. तो आपने अगर उनको authority देनी है, उसमें वो सारे parts highlight हुए हों कि case law में से आपने ये use किया है, इस book के extract में से आपने ये use किया है, इस चीज़ में से आपने use किया. So I think वो सारी जो चीज़ें हैं वो they do matter and they do count in. उसके अलावा sticky notes and like notes for the team, we used to have them क्योंकि there are questions जो आपसे judges पूछ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा they ask you interlinked questions, 1 2 3 4 5 इकट्ठे questions कर लेते हैं वो आपसे, तो फिर आप उन questions को किसी जगह पे उनके मतलब main pointers लिख लो so that you don't forget and you don't ask what was your question और ये सब चीज़ें जो कि awkward लगती हैं. So we used to write वो सारे questions. अच्छा, exchange of notes was allowed? Exchange of notes is allowed, yeah. Within the team it is allowed. कुछ moots में अगर नहीं भी allowed होता तो they tell you beforehand. But while pleading, the researcher can actually give you notes. तो उसके लिए we used to have those sticky notes. And उसके अलावा teamwork because बहुत matter करता है when you are presenting. तो उसके लिए what we used to do was कि हम एक दूसरे के लिए भी notes बना लेते थे कि like speak slow, calm down, speak a little fast, have more energy, drink water, या अगर कोई reference या authority the other person is missing out तो हम वो लिख के like you know we used to pass that on. तो इस तरह की सब चीज़ें I think भी आपकी फाइल का पार्ट होती हैं, they're very significant or they're very small but they do create a lot of impact in the longer run. Coming towards like oral rounds, ठीक है, इनका क्या criteria है और ये कितने होते हैं like oral rounds ना? Okay. As like I think we already discussed, you have to prepare the case from both sides, the plaintiff and the defendant as well. Also. Yes. तो when you're having the orals, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि that depends I think or from the competition to competition कि आपके कितने rounds हैं. कुछ में आपने you have to plead 4 times, some like in some cases you have to plead more than that. तो हम लोगों के इसी तरह होता था कि that is mentioned in the schedule beforehand. तो oral rounds में फिर हम जो तैयारी करते थे वो उसी हिसाब से करते थे कि who is gonna do plaintiff, who is gonna do defendant, या अगर दोनों करने हैं तो उसमें कौन कौन सी sides करनी है, like या कौन से issues करने हैं, कितने issues करने हैं per person. So we used to divide that and उसके हिसाब से फिर आपका number of rounds vary करता है as an individual speaker. अच्छा, इधर मैं आपसे एक टिप लेना चाहूँगी कि how to control your nerves and boost up your confidence in oral rounds. Boosting up, it's all about nerves. It's all about just like mind games. A few things कि you have to sound confident, ठीक है, because it's not about what you say, it's about how you say that. Exactly. So you have to speak very impactfully, and for that you need to speak a little slow. You have to speak a little calm, like calm, not very arrogantly, but it's not कि आप monotonously बात करें, इतना calm भी नहीं होना कि monotonous हो जाए, because retention I think is very important.
कि whether you are able to keep the judge hooked, whether you are able to keep them engaged, कि वो आपको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे. So I think वो जो एक connectivity है वो तभी build up हो सकती है when you are sure about your arguments, when you are confident enough, and when you have practiced a lot. So I think before presenting the final day, उससे पहले आप जितनी practice करेंगे it's better. So practicing, I think. Okay, Hadiya, what preparation is required in contest to oral rounds? Oral rounds. Oral rounds, I think there are a number of factors, and orals, they are the most important part of the mooting, because you're presenting in front of like the judges, whatsoever you've prepared for a very long time, and you have a very limited time to do that. So I think time management, firstly, you practice a lot for that, कि आप कितना जो है एक given time में कितना impactfully बात कर सकते हैं, या कितना proper तरीके से you're able to execute what you have like learned over the time. So उसके लिए you need to be very clear, very articulate, very to the point, and very within time. And I think जो चीज़ें matter करती हैं सबसे ज़्यादा is that कि how you made the judge feel as well. Because when they're gonna ask a question, आप उस question को कितना welcome कर रहे हैं, कितना you are happy to take it, and you don't have to sound arrogant, because when there's this very fine line between being confident and being arrogant. Yeah, exactly. So you have to balance that out. You have to like look calm and composed, but not very calm कि monotony आ जाए. Yeah, so you have to be very focused about कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप बहुत well proper तरीके से कर रहे हैं, composed हैं आप, and उसके अलावा how responsive you are to judges, and how responsive you are and how contextual you are while answering questions, and आपने relevant authorities दी हैं या नहीं दी, because we tend to forget कि अच्छा इस चीज़ की authority थी case law से. तो I think when we practice, तो उस वक्त हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं बिफोर ओरल्स. तो आप जब को इन एक्चुअल को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपको याद आ जाता है कि ओके आई हैड दिस अथॉरिटी, आई कैन यूज इट, एंड जस्ट आपने राइट टाइम, राइट थिंग, राइट स्पॉट, यू जस्ट हैव टू हिट इट. सो आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही आता है, एंड देन व्हेन यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट तो आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं. सो इट्स जस्ट अबाउट कि यू नो व्हाट यू आर सेइंग, एंड it's all about how you say it rather than what you're saying, because it's a saying na ke it's not about what you say, it's about how you say. So you just have to be impactful, clear, confident. Acha Hadiya, how to face a hard question? What if you don't know the answer of certain question that is asked? Yes, if this happens और ये होगा, it's an inevitable thing. I think आप जितनी भी तैयारी कर लें, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे आप शायद अनफेमिलियर होते हैं. लेकिन आई थिंक इट्स अगर आपने अच्छी रिसर्च की होती है तो आपने टच अप तो कुछ ना कुछ किया होता है. Exactly. और जितनी आप तैयारी कर चुके हैं आप कोई ना कोई आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं. सो आई थिंक यू शुड ट्राई टू फॉर्मुलेट अ क्लोज इनफ आंसर. एंड अगर कोई बहुत रेलिवेंट, मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर आपसे उन्होंने पूछा है कि फलानी चीज़ कब डेट थी इसकी, या कोई इस तरह की चीज़, तो देन यू कैन से कि ओके मतलब मे बी आई विल कंसल्ट माई रिसर्चर, या रिसर्चर खुद आपकी हेल्प कर देता है, या फिर then you can say no to it. Otherwise try to answer, try to give your best shot, because answers को ना आपने negative context में नहीं लेना. आंसर से क्वेश्चनिंग के साथ एक चीज़ एसोसिएटेड होती है कि हाय बहुत क्वेश्चंस कर लिए जजेस ने, ये कर लिया वो कर लिया. नो, आई थिंक दैट्स अ वे फॉर यू टू टेल देम कि हाउ मच यू नो, एंड इट्स अ वे फॉर यू टू लाइक गिव देम ऑल द थिंग्स, ऑल द रिसर्च दैट यू हैव प्रोवाइडेड. 7 मिनट या 14 मिनट्स की रीडिंग में आप ये नहीं कर सकते, लेकिन when they engage with you in questions, I think that's the golden chance for you, or the opportunity for you to tell them how well prepared you are for a case. So what is the marking criteria of orals? मार्किंग क्राइटेरिया में जो प्राइमरी तौर पे कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो कि यूजली मोर और लेस दे आर सेम फॉर मोस्ट ऑफ द मूड्स. इट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इट्स द क्लैरिटी कि आपको अपनी मूड प्रॉब्लम का कितना पता था, हाउ फेमिलियर यू वर विद द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड द अथॉरिटीज़. बिकॉज लाइक व्हेन यू प्लीडिंग, अगर आप एक फैक्ट मेंशन कर रहे हैं, सो दे लास्ट के वेयर इट इज़ रिटन, सो यू शुड नो कि पेज नंबर 40, पैरा नंबर 39, लाइन नंबर 9 या 10 में इस जगह पे ये चीज़ मेंशन्ड है. सो आपको इतना क्लियर होना चाहिए अबाउट द केस फैक्ट्स. एंड देन आई थिंक दे ऑल्सो सी कि आपको अथॉरिटीज़ कितनी वेल अवेयर थे आप उनसे. सो आपको बाज़ दफ़ा वी ऑल्सो यूज टू डू सम रिसर्च ऑन द अथॉरिटीज़ कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस ऑथर हैव सेड दिस, सो दे विल बी लाइक ओके हु इज़ दैट ऑथर, like is the author credible enough. So I think knowing your authorities वो भी बहुत important होता है, because you'll be judged on time management, on your advocacy or the convincing, and your clarity of facts, your authorities, and your
टीम वर्क भी कंसिडर करते हैं वो मार्किंग में क्या ऑब्वियसली टीम वर्क तो Yes. कंसिडर वो तो एक एसेंशियल उसमें आ जाता है ना, क्योंकि अगर आप कुछ भूल जाते हो, जैसे आप बता रहे हो कि आपकी टीममेट्स आपको हेल्प आउट करते हैं ना, तो इसलिए लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना तो तीनों के उसमें होगा ना, कि वो भी आपको जिस तरह बताएंगे कि अभी यहाँ पे एक और मुझे क्वेश्चन ध्यान में आया था कि आप मुझे बता रहे थे कि लाइक आपको बताना होता है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा केस लॉ है, पेज नंबर एंड मतलब इस तरह करके, तो अगर वो आप भूल जाएं तो आपका रिसर्चर यूजुअली हम सब पूरी टीम के पास मेमोज होते हैं और इसीलिए तो हम आपकी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर मैनेज्ड केस फाइल. आप जब केस फाइल प्रिपेयर करेंगे उसमें वी यूज टू पुट ऑल द पॉइंटर्स. आप व्हेन यू प्रिपेयर्ड आपने जब प्रिपेयर किया यू वेंट थ्रू द होल मूड प्रॉब्लम. आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, मार्क किए हुए. इट्स लाइक अ वेरी अगली डॉक्यूमेंट जो आपका एक्चुअल मेमो होता है. इनफैक्ट फाइल में नया मेमो लगता है यूजुअली, बिकॉज तब तक वो बहुत ख़राब हो चुका होता है. तो आपको पता होता है कि ये पैराग्राफ्स और ये इस जगह पे फैक्ट मेंशन्ड है एंड देन यू आर एबल टू टेल दैट आउट. फिर आपका मेमो जो होता है उसमें वो सब चीज़ें मार्क होती हैं. सो यू जस्ट आस्क फॉर अनदर मिनट और you just like take few seconds and you open it and go look for the reference. Usually it's within you, like with you, sorry. You usually have the reference with you. It's just कि you're not able to bring it out, लेकिन आप पूछ के कर सकते हैं. अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स रिबर्टल्स एंड सब रिबर्टल्स, लाइक व्हाट आर दे और इनको कैसे डील करेंगे आप? Rebuttals जो होते हैं once the prosecution or the plaintiff have presented, then the defense, prosecution, defense. So उसके बाद आपने जो है उन you have to rebut them, right? उसका usually 1 minute reserved होता है कि आपने जो opposing counsel थी उसका अगर कोई ऐसा point है जो कि आपको लगता है कि you can argue on that or that was their loophole, you just point that out in front of the judge. इसमें आपने अपना केस स्ट्रॉन्ग नहीं करना होता या न्यू पॉइंट्स नहीं लाने होते. आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेड पॉइंट्स को या तो अपने किसी पॉइंट को डिफेंड करना होता है. यूजुअली यही होता है कि आप अपने पॉइंट को डिफेंड कर रहे हो या आप उनका कोई लूप होल पॉइंट आउट कर रहे हो विद इन अ वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड. एंड देन आपने जो पॉइंट रेज किया होता है उसको सर रिबट करती है अपोजिंग टीम जिनकी आपके बाद लाइक आइदर इट्स डिफेंस और द प्रोसिक्यूशन. So Hadiya, like what do you think, like as Vis Moot is related to international commercial arbitration, ठीक है, while coming back to Pakistan, आपको क्या लगता है कि जैसे हम लैक कर रहे हैं, अगर हम ADR के प्रोसेस में देखें तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर हम नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करें तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? Okay, fair arbitration it comes under the domain of alternative dispute resolution. इसके साथ mediation होती है, negotiation होती है, and then arbitration भी होती है. So I think if we bring that in to the context of Pakistan, तो हमारा जो legal affair है उसके तो बहुत बेहतर हालात हो जाए. Because currently considering the fact कि इस वक्त पाकिस्तान में almost 2.1 million pending cases हैं और we have on almost 3,500 judges. So which is very less. अगर आप एक इंसान पे भी देखें कितने cases पड़े हैं, so we need like 10-15 साल ऑब्वियसली. एंड द केस में जो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में केस की शेल्फ लाइफ होती है दैट्स ऑल्सो वेरी एक्सटेंसिव. लेकिन इफ़ यू कंसिडर यही सारी चीज़ें इन डेवलप्ड इकोनमीज़ या बेहतर जो कंट्रीज़ हैं, यूएस ले लें, कोई भी और जगह ले लें, सो इट्स फार मच बेटर बिकॉज दे डू कंसिडर ADR and then they go to litigation. What we do is कि हमारे पास because we are not very well aware about ADR, तो हम उसको रेफर ही नहीं करते and we like directly go towards litigation. Litigation का भी बुरा हाल है लेकिन स्टिल वो तो है ही. yes. So I think अगर आप अभी से ये लॉ अपने स्टूडेंट्स में डिसमिनेट करते हैं and you make them aware and you tell them कि how beneficial it is for our economy as well because then you bring in all the international market. मतलब आप अच्छी खासी बड़ी multinationals को लेके आते हैं on stake on board when they know कि the legal process is smooth, right? So I think it's a win-win situation for our economy, for our legal fraternity, for our legal system to grow as well. So it's very important. And जब हमने इसको international domain में देखा तो हमें लगा कि यार that's the reason कि उनकी ना courts overburdenized हैं, ना judges overburdenized हैं, they have a better system and they are law-abiding citizens and as well as like law-abiding people who are making law as well. यहाँ पे हर चीज़ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है. अल्लाह करे सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप होती जाएं, ठीक है. अच्छा हादिया, आपने जैसे लाइक नेशनली एंड इंटरनेशनली मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो अटेंड किए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि इनका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है इन मेकिंग ऑफ मेमोरियल्स और इन प्रिपरेशन ऑफ ओरल राउंड्स, इसमें लाइक इनकी प्रिपरेशन की प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है नेशनली और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो? इट्स मोर और लेस अबाउट आई थिंक वेरी जो चीज़ करती है वो इनकी टाइमलाइन करती है कि फॉर इंस्टेंस व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द नेशनल्स ऑफ HDMC so we had slightly less time period. लेकिन for Viz it was even extensive. अभी जैसप होना है, जैसप के nationals नास्टी होस्ट कर रही है. Last time we also hosted them. I hope so this year as well. लेकिन जैसप के जो nationals होंगे
वो भी अभी से उसकी प्रिपरेशन अगस्त सितंबर वाली ब्रैकेट से स्टार्ट हो जाती है एंड दे हैपन नेक्स्ट ईयर. सो आई थिंक जब आपके पास जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उतना हैपनिंग वो सर्टन इवेंट हो जाता है और उसकी फिर प्रिपरेशन या उसका जो थ्रेश होल्ड होता है वो उतना इंक्रीज हो जाता है. द बेसिक थिंग्स आर मोर और लेस द सेम कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिटन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ओरल्स, मेमो ड्राफ्ट होगा, उसके बाद आपने ओरल्स की तैयारी करनी है, वो सब चीज़. लेकिन अगर इंटरनेशनल कंपटीशन है तो ऑब्वियसली द स्केल गेट्स इंक्रीज्ड. आपका कंपटीशन विद इन स्टेट्स हो रहा होता है, विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो रहा होता है, सो यू प्रिपेयर मोर. सो आई थिंक इट्स मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ कि आप कितना टाइम अपना देना शुरू कर देते हैं टू अ सर्टन कंपटीशन और टू अ सर्टन इवेंट. सो दैट्स मोर और लेस लाइक all same things but playing around the timelines कि आप उनको ज़्यादा extend कर देते हो. for international ones and for national ones थोड़ा छोटा होता है. So what do you think, what sources one must know when doing research for like international competitions? International competitions अच्छा national international में vary करती हैं because that primarily depends on the law that you are kind of doing a moot on. जिस तरह से हेनरी डूना या HDMC वॉज अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स और वॉर क्राइम ये सब चीज़ें, तो उसके लिए हमें जिनेवा कन्वेंशंस चाहिए थी, उसमें हमें उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स चाहिए थे, एडवाइजरी काउंसिल ओपिनियंस चाहिए थी. वो ज़्यादातर डाटा ICRC की वेबसाइट पे होता है, सो हमने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रेफर की. लेकिन व्हेन यू स्विच टू विज या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वगैरह उसका डोमेन कम्प्लीटली डिफरेंट है. उसके लिए वी हैड एक्सेस टू क्लूवर आर्बिट्रेशन फॉर सम टाइम और उसमें से वी वर लाइक सर्चिंग फॉर रेफरेंसेस एंड अथॉरिटीज. यूनिलेक्स होता है, क्लाउड था, देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज. सो आई थिंक दे वेरी. अगर आप नेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो ऑब्वियसली यू विल हैव पाकिस्तान लॉ साइट, यू विल हैव लॉ जर्नल्स, यू विल हैव PLDs और ये हर सब्जेक्ट वाइज आई थिंक इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. अच्छा हादिया, आप यहाँ पे कोई ऐसी टिप्स शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि जब अपने टाइम पे आपने मिस आउट की और वो अगर आप करते तो उस चीज़ में एक्सेल कर सकते थे? यार सो फार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था. लाइक HDMC में भी वी हैड लाइक रियली गुड रैंकिंग्स. एंड पे थोड़ा सा हो जाता है, किस्मत आ जाती है. उसके बाद सेंट्रल एशिया में भी जो हमारा विज प्री मूट था उसमें भी वर रनर अप्स. लेकिन आई थिंक इन जनरल इफ़ आई हैव टू से इट्स कि हमारी आई थिंक टीम वर्क वो जो प्ले करती है ना इन द एंड, आई थिंक या जो आपकी इंटेंशंस होती हैं, बिकॉज जो नीयत होती है इंसान की वही बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है. सो अगर आप इनसिक्योर हो के थोड़ा सा आपस में हो जाते हैं, सो आई थिंक दैट शोज अप इन द एंड एज वेल एज अ रिजल्ट. लेकिन अगर आप एक बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली काम करें तो आई थिंक दैट्स लाइक अ थिंग. बट एज इन क्वेश्चन आई थिंक हमारा टीम वर्क अगर बहुत बेहतर होता और उसके अलावा हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकती, सो बोथ द थिंग्स हैव वर्कड एंड लाइक टुगेदर, सो मे बी. बट अदरवाइज आई थिंक वी वर्कड ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स मोस्टली. चलें, अब तैयारी की तो काफ़ी बात होगी. हाउ टू मेक द मेमोरियल और ओरल राउंड्स में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आपने बताया वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और जो भी आपने टिप्स दी एंड आई थिंक लाइक दे वर इंस्पायरिंग. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर एक्सपीरियंस इन विस मूट. ठीक है, दैट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशंस और वहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है. लाइक आप गए और रिप्रेजेंट किया आपने अपनी यूनिवर्सिटी को देयर, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर एंड हाउ यू गॉट योरसेल्फ एनरोल्ड देयर? Okay, so Vis Moot basically it happens like the edition in which we were, it was the 30th Vis Moot, so it has like obviously happened 30 times prior to that. अभी 31st उनका chapter start हो चुका है. The teams वगैरह. अच्छा पहले बताएं, आपको रिकमेंड किसने किया था विस मूट के लिए? लाइक इसका आपको पता कैसे लगा था? I was not even signing up till last date. ठीक है, हम लोग HDMC से वापस आए थे and HDMC से हम थोड़ा सा we were like a little off for the fact that we didn't win because we prepared for it a lot. हमने HDMC के लिए बहुत 3-4 महीने तैयारी की थी and हम बहुत off थे. We taken back with the fact. तो हमारे जो कोच थे, जो हमारे सर थे, I credit him a lot for all the mooting that I've done because वो हमेशा बहुत पुश किया करते थे. तो he said कि apply for it. I was like देखती हूँ, अच्छा ये वो, एंड लास्ट डेट था. तो हमारी जो ऑफिशियल आउटलुक की ईमेल थी उस पर हमें सर्कुलर आया हुआ था कि विज मूट का कोई रजिस्ट्रेशन चल रही है तो रजिस्टर करें आप एज एन इंडिविजुअल, देन देयर विल बी इंटरव्यूज. जो आपको पहले पता था कि ये नो, विज मूट होता आई है? डिडंट नो एनीथिंग अबाउट विज मूट. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट आर्बिट्रेशन, ADR और विच इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मुझे कुछ भी नहीं पता था. अपना इंटरव्यू था जिस दिन मेरा ऑनलाइन, उसमें हमारे HOD and then some representatives from CLDP were there, which is commercial or development program, and they sponsor teams. और I think Viz करना is one thing,
लेकिन CLDP के थ्रू स्पॉन्सर्ड विज करना इज ह्यूज, या एंड इट्स अ गिग. सो आई थिंक उस वक्त ना मैंने सर से कहा कि अच्छा कर देती हूँ एंड ये वो, एंड आई जस्ट अप्लाइड रैंडमली. जिस दिन इंटरव्यू था, इंटरव्यू से 5 मिनट पहले आई जस्ट टेक्स्टेड अ क्लास फेलो ऑफ माइन एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज आर्बिट्रेशन, एंड ही सेड कि आर्बिट्रेशन अच्छा यही है. तो उस वक्त ये हुआ कि इट वाज आवर 4th 5th सेमेस्टर. अब हमें आर्बिट्रेशन वगैरह हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था. हमने कोई एक कोर्स इंटरनेशनल लॉ और इस तरह जनरल चीज़ें पढ़ी हुई थी. और मेरे ख्याल से कि 4th 5th सेमेस्टर में तो अभी ये बेसिक सब्जेक्ट्स ही हम आगे लेके चल रहे होते हैं, तो वो तो डिफिकल्ट होगा एक थिंग. यस. तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह. तो मैंने भी बस वो 30 सेकंड्स का वॉइस नोट सुन के आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. So they asked me, okay, I was telling them this was my experience and I had a good like interaction with them. उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आर्बिट्रेशन, मैंने बता दिया ये है जो मैंने सुना था. उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में डिफरेंशिएट करना. आई वाज वेरी ओपन. आई वाज लाइक we are in this semester, we have not studied it yet, but obviously I can learn because that's the key to it. So I was like sure enough that I can learn, I can quickly learn and I will learn. So like okay fine enough. So I think उस इंटरव्यू के बाद हमारी एक शॉर्ट लिस्ट होके आए थे नाम कुछ फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद हमारी टीम फॉर्मुलेट हुई एंड देन वी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर इट. सो इट वाज फ्रॉम डिपार्टमेंट. और CLDP उससे पहले आई थिंक एक दो दफ़ा फातिमा जुन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी और कायद आज़म यूनिवर्सिटी उनके साथ दे वर लाइक ऑलरेडी वर्किंग. सो देन दे शिफ्टेड टू नास्ट एंड उन्होंने फिर हमारी टीम को स्पॉन्सर किया, फंड किया फॉर दिस एंड प्रिपेयर किया, प्रोवाइडेड अस विद कोचेस एंड रिसोर्स मटेरियल एंड एवरीथिंग. अच्छा, आपके टाइम पे जो विलियम सी 30th बता रही ना, 30th विस मूट कॉम्पिटिशन था, ये कहाँ पे था, कंडक्ट हुआ था? इसके राउंड्स कौन से उस पे थे? 30th जो विस मूट था, विस मूट बेसिकली उसका एक ईस्ट होता है चैप्टर, एक वेस्ट चैप्टर होता है. वन ऑफ देम हैपेंस इन हांगकांग एंड द अदर वन हैपेंस इन वियना, ऑस्ट्रिया. ओके. So we signed up for the Austria one and we went That was to Vienna. your choice? That our department's choice. Okay. CLDP actually asked for what you want, so we went for the Vienna one, even though that's more competitive, that has more teams, because obviously सारा European जो एक आपको universities का set मिलता है, that's found there. Exactly. तो वो बहुत competitive भी था उस लिहाज से. I think 370 teams या 350 plus teams तो precisely वहाँ पे थी for the competition. So we went to Vienna. You went to Vienna. Okay. What were the criteria and requirements in the preparation of like Vis Moot? Vis Moot में we got an international coach. वो भी वैसे Vis Mooties ही होते थे. जो हमारी कोच थी, she worked really hard with us. She helped us prepare for the whole competition and वो हमारी ऑनलाइन इतनी मीटिंग्स होती थी कि हम क्लासेस से फ्री होते थे, उसके बाद हमारी 2-3 घंटे की ऑनलाइन मीटिंग होती थी जिसमें हमने पूरी टीम के तौर पे अपनी रिसर्च डिस्कस करना होता था. फिर हमारे मेमोज डिस्कस होते थे, वो हमें उसमें सारी मिस्टेक्स निकाल के वापस भेजती थी, हम रीड्राफ्ट किया करते थे. तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन क्राइटेरिया यही था जो हमारी कोच हमारी कंसेंसस के साथ हमारे लिए डेवलप करती थी, जो उनके मुताबिक वो उसके ओके एज न्यू स्टूडेंट्स इनके लिए बेस्ट होगा. तो पहले वी हैड टू गेट अस फेमिलियराइज विद द होल कोर्स और होल आर्बिट्रेशन. हमने वी वेंट थ्रू अ होल बुक. उन्होंने हमें एक बुक दी थी वर्चुअली PDF. हमने भी प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट. उसके बाद जब हमारी मूट प्रॉब्लम रिलीज़ हुई तो उसके बाद हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए कि जैसे CISG से करना है तो CISG की कॉमेंट्रीज पढ़ेंगे, अनसेट ट्रायल का मॉडल लॉ देखना है एंड इस तरह करके. दैट वाज मोर स्पेसिफिक टू द मूट प्रॉब्लम. तो क्राइटेरिया फिर आपका उसके बाद डेवलप होता जाता है फॉर दैट्स मोर रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम एज वेल. अच्छा हादिया, वाज इट चैलेंजिंग लाइक स्टडीज़ के साथ? ऑब्वियसली आपका सेमेस्टर भी चल रहा था और फिर विस मूट की तैयारी एंड ऑल ऑफ द सडन एक ऐसी चीज़ आप होल्ड कर लेते हो जिसका आपको पता भी नहीं है, जो आपने पढ़ी भी नहीं है, ठीक है, और फिर आप उसको लाइक उसकी प्रिपरेशन करते हो और सारा कुछ. टाइम मैनेजमेंट कैसे की? यार टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी मच डिपेंडेंट. जो हमारी कोच थी, शी हैड अ गुड वे टू टेक अस. वी हैड एक्चुअली 2 coaches. One of them was our coach who was actually from Sri Lanka and she was teaching us arbitration, international commercial arbitration. और फिर हमारे फैकल्टी कोच थे who used to make sure कि हम विद इन यूनिवर्सिटी डोमेन उन सब चीज़ों को मेक श्योर कर रहे हैं जो कि हमसे रिक्वायर्ड हैं या नहीं. तो दे वर लाइक देयर ऑन अस कि हमारा जो टाइम है ना वो मैनेज होना चाहिए. वी डिडंट हैव द ऑप्शन कि हम उसको मैनेज ना करते. सो आई थिंक वो एक चीज़ थी. एंड उसके अलावा लर्निंग द न्यू लॉ बिकेम लाइक इट वाज स्लाइटली ईजियर कि जब हमारी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही होती थी ऑफ एंड ऑन, और हर मीटिंग में अकाउंटेबिलिटी थी बिकॉज आवर कोच यूज्ड टू आस्क अस क्वेश्चंस, आस्क अस कि व्हाई वी आर नॉट आंसरिंग, व्हाई वी आर नॉट देयर. तो जो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट आ गया और 2 तरह के कोचेस आपकी 6 लोगों की टीम को एट द सेम टाइम जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं. सो आई थिंक वी डिडंट हैड द थिंग कि हम जो है वो थोड़ा एस्केप करते या वो सब चीज़ें करते. सो वी प्रिपेयर्ड
and it was like for almost 7 to 8 months का time period. So yeah, it went well. What was the preparation process for Vis Moot in terms of making memoranda, oral pleadings की like तैयारी करना और सारा कुछ? Was it different from what you did locally? थोड़ा बहुत इन दिस कॉन्टेक्स्ट के ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल वाला एलिमेंट आ गया था तो कंपेटिटिवनेस ज़्यादा थी. देयर वाज दिस थिंग कि अच्छा हम लोगों ने इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 8 मंथ्स 7 to 8 मंथ्स थे रफली, जिसमें हमने फर्स्ट विज मूट प्रॉब्लम रिलीज़ होने से पहले हमने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पढ़ी. उसके बाद हमने प्रॉब्लम रिलीज़ होने के बाद प्रॉब्लम के ऊपर पढ़ के स्पेसिफिक लॉ पढ़ना शुरू किया, कॉमेंट्रीज, उसके बाद मेमो ड्राफ्ट करना शुरू किया. सो मेमो ड्राफ्ट करने के बाद आई थिंक मेमो ड्राफ्ट करना जो था ना, वो हमने जब देखा ना कि इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में कितना वेरी करता है, दैट वाज ह्यूज बिकॉज आवर कोच यूज्ड टू टेल अस कि दीज आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो लिटरली प्रोजेक्टर पे लगा के आपका मेमो रीड करते हैं. सो यू कांट बी लाइक नेग्लिजेंट अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक वो जो एक फैक्टर था वो डिफरेंट था फ्रॉम पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट. एंड उसके बाद वाई प्रिपेयरिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि वी यूज्ड टू हैड फ्रेंडलीज विद इंटरनेशनल टीम्स. तो फाइनल राउंड्स होने से पहले हम जो है वो अपना ना टर्की की टीम से, जर्मन टीम से और चाइना की भी कुछ टीम्स थी, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, लाइक हम डिफरेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो टीम्स How many विज़ होती teams थी. were there? For the final round in Vienna, they were I think 370 something और कुछ इस तरह teams थी. There were a lot of teams. तो हम पहले ही उनसे ना through LinkedIn या Instagram या Facebook वगैरह के through connect करके, तो we had a person specified in our team. He used to connect with them and फिर हम उनके साथ जब तैयारी किया करते थे. So I think जब आप national level पे कर रहे होते हो तो you don't do this with teams like along. आप national level पे universities का friendlies practice नहीं करते for a final round, जो कि हमने वहाँ पे किया था कि हम friendlies करते थे और फिर हम वी प्रैक्टिस्ड एंड वी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल्स. और वो फिर लेकिन आपने वो उन टीम्स के साथ करना होता है जिनके साथ आपका वहाँ पे राउंड ना हो. How was your interaction with the like professors and the coaches there? Okay, so that was amazing. People over there were nice, they were accommodating and they were very open because Pakistan से दो ही टीम्स थी, एक फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी और एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छा है कि लाइक यू नो पीपल आर कमिंग ओवर बिकॉज ऑब्वियसली इफ alternative dispute resolution ADR altogether comes to Pakistan, yeah, in our context it's a win-win situation for both of us, for all the growing economies all across. So I think they were welcoming, they were nice, they were accommodating and they were considerate. हमें एक थोड़ा सा apprehension था कि obviously considering the fact that we are coming from subcontinent और एक मुस्लिम country, तो पता नहीं हमारी grading पे भी वो effect करे ना करे ये सब चीज़ें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I think that was not the case. People were nice, they were good enough. So yeah, I'm happy your experience was great there. Okay, so coming to us, कोई ऐसी memory, कोई ऐसे experience जो आप share करना चाहो that left long lasting impact on your legal journey? On my legal journey, I think all the moots they have a good impact and I think doing it while being 20, I was 20 when we got in Viz and बहुत initial हमारे years थे. Last year it was just our 4th-5th semester जब हमारी selection हुई और उस वक्त 7 to 8 months के टाइम पीरियड में ऑफ एंड ऑन ट्रैवलिंग. पहले हम कजाकिस्तान गए फॉर आवर ओरल फॉर आवर ट्रेनिंग्स कि आपने मेमो प्रिपेयर कैसे करना है ये सब. उसके बाद वी वेंट टू कजाकिस्तान अगेन इन मार्च. पहले अक्टूबर में गए, फिर मार्च में गए और उस वक्त हमने प्रिपेयर किया फॉर आवर ओरल प्लीडिंग्स एंड देन उसके बाद वियना गए हम फाइनल्स के लिए इन अप्रैल. सो आई थिंक वो जो ऑफ एंड ऑन ट्रैवल करना था और उसके साथ उन सब चीज़ों को लाइक प्रिपेयर करना जो हम ऑनलाइन मीटिंग्स में कर रहे होते थे. पहले आप वर्चुअली लोगों के साथ बात कर रहे हो एंड देन आप फेस टू फेस उनसे मिल रहे होते थे एंड उनके साथ वर्किंग विद देम, यू गेटिंग अ चांस टू वर्क विद देम. सो आई थिंक कमिंग फ्रॉम हमारा जो बैकग्राउंड होता है पाकिस्तान में और जो हमारे सोशियो कल्चरल डायनामिक्स होते हैं उसके हिसाब से दैट वाज ह्यूज एंड दैट्स समथिंग दैट आई चेरिश फॉरएवर. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस लिहाज से, एज इन माई ओन ग्रोथ, as a woman, as a female lawyer, as the first female lawyer of my own family. Okay. Yeah, so it was like breaking all those things in my own context and like barriers जो भी कह रहे हैं आप family के. So I love doing that actually इस context में. Exposure मिला, Yeah. experience मिला और that was all fully Lifetime funded. connections and everything, yes. Acha, for the aspiring mooters who want to compete in Vis Moot, now what advice would you like to give them according to your own experience? I'll say कि सबसे पहले do it, ठीक है, give it a shot. It's a rigorous journey और उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए होती है हर तरह की because you feel like
there's this saying that Vis Mooties say, जो एक इतनी बड़ी community है Vis Moot की, and they have it like so well maintained. I remember Vienna में इतने पुराने mooties, like बहुत पुराने mooties, and they have a Vis alumni as well, they have alumni associations as well, and they're working so like procedurally, thoroughly, proper process के through, कि that's amazing. तो वो कहते हैं कि if you've done Vis Moot, you can actually do anything, because वो आपको इतना rigorously train करता है. So I think one thing is कि learn it with an open heart. आप सीखें, because जो आप सीखेंगे वो आपके काम आएगा. International commercial arbitration है सारी, और try to, because जब आप वो सीखेंगे ना तो आप relative analysis और comparison कर सकेंगे, और जब आप वो कर सकेंगे तो definitely you will able to bring out good in your own country as well. That's what CLDP is also doing. उनके जो spokesperson है for this region, they are working with high courts, they were trying to create arbitration centers in Pakistan. So if you get in Vis Moot, you create a network for yourself, not in that specific time period, but in fact that's lifelong. That's right. Because आपकी opportunities हैं, आपके लिए there are a lot of doors that Obviously, they'll it's a open for you. lifetime experience. Yes. जो कि like I think being a law student, अगर आप ये experience initially ही कर लेते हो, so that is a thing. Yes. That is a thing. It's an add-on in your CV as well for Exactly, future. exactly. Yes. And that impacts to like professional life में तो कुछ ज़्यादा ही impact बहुत करता है. So as Pakistan is also offering variety of more competitions too, could you please highlight about them as well? यार कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हो रहे होते हैं नेशनल लेवल पे मूट्स, जैसे अभी आई रिमेंबर बहरिया का मूट था, बहरिया का मूट कोर्ट कंपटीशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑल अक्रॉस. अभी नेशनल्स नहीं होस्ट कर रहा, दे ऑब्वियसली वी विल इंशाल्लाह इन फ्यूचर, लेकिन अभी हमारे इंट्रा ही हुए हैं. वी हैड 2 इंट्रास, अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगला होगा, प्रॉब्ली विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अभी कुछ टाइम बाद ही. बट उसके अलावा लम्स का होता है, बहरिया यूनिवर्सिटी का होता है, डेनिंग्स का होता है आई थिंक, और भी नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन भी एक और होता है. देयर आर लॉट ऑफ मूट्स, यू कैन एक्चुअली चेक आउट. लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें जो कि नेशनल राउंड्स के बाद इंटरनेशनली करते हैं, वो HDMC है, हेनरी डूना मूट कोर्ट कंपटीशन, जो ICRC, जिसमें हमने पार्ट भी लिया हुआ था. यस वी डिड दैट. उसके बाद हमारे पास ये अब विज आना शुरू हो गया, एंड होपफुली विज का जो नेशनल राउंड है वो अगले साल नेक्स्ट में ही होगा इंशाल्लाह. और उस नेशनल्स के थ्रू जो फिर टॉप टीम सेलेक्ट होंगी उनको CLDP स्पॉन्सर करेगी फॉर अब्रॉड. दिस इज समथिंग जो कि अभी हो रहा है, इट्स नॉट फाइनलाइज्ड येट, पूरी टाइमलाइन भी अभी तक नहीं like निकली, और but यूनिवर्सिटीज को ऐड किया जाएगा इस प्रोसेस. yes inshallah, because definitely that's what they want everyone on board with them, because they want more students, they want an alumni to be created. और इसी over तरह here. अभी जो 3 days का कोर्स भी हुआ था वो भी Summer workshop, summer yes, workshop yes. तो इसके अलावा जेसप है, जेसप के नेशनल राउंड्स भी लास्ट ईयर ने होस्ट किए थे, एंड होपफुली इस साल भी वी विल. इल्सा का स्पॉन्सर्ड होता है जो, और US एम्बेसी हमेशा स्पॉन्सर करती थी जेसप के लिए स्टूडेंट्स को. लास्ट ईयर उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस साल दे माइट. सो जेसप के नेशनल राउंड्स के बाद ऑब्वियसली उसका जो फाइनल होता है वाशिंगटन DC में होता है, एंड उसके अलावा एक न्यूरमबर्ग मूट कोर्ट कंपटीशन होता है. यू हैव टू चेक इट आउट ऑनलाइन, और उसके लिए आपने पहले रिटर्न सबमिट कराने होते हैं, एंड देन उसके बाकी फाइनल प्रोसेस होता है टीम सिलेक्शन के बाद. सो आई थिंक दीज फिलहाल, इसके अलावा भी डिफरेंट होते रहते हैं. यू कैन चेक आउट डिफरेंट लाइक पेजेस वगैरह ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक. सो फार जिनका मुझे पता है, ये दोज आई हैव एक्सपीरियंस्ड. हादिया, आपने पार्टिसिपेट किया था हेनरी डूना में भी, उसका आप थोड़ा सा बताएं कि लाइक उससे क्या एक्सपोजर मिला आपको? उससे जो है वो आई थिंक द गुड थिंग वाज कि हमने नेशनल लेवल पे जितना नेटवर्क किया, और आपको यू मीट लाइक माइंडेड पीपल. HDMC का डोमेन कम्प्लीटली डिफरेंट था. ऑब्वियसली इट वाज ICC टाइप की जुरिसडिक्शन, दैट वाज मोर अबाउट क्रिमिनल, उस तरह की उसकी डोमेन थी, और वॉर क्राइम्स लॉ, ये सब चीज़ें. लेकिन आई थिंक टू बी मोर स्पेसिफिक आई कैन से कि जो हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड कर सके ना आउट ऑफ दैट, कि वी कनेक्टेड विद बहरिया यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म, डेनिंग्स, जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त. लम्स, वी केम अक्रॉस ऑल ऑफ देम. हमने देखा कि हाउ दे हैव द एज ओवर अस, दे हैव द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. आई थिंक दैट वाज वर्थ इट. और लर्निंग एक्सपीरियंस तो इन इटसेल्फ था ही कि वो लॉ जिसे हम कन्वेंशनली या यूजुअली नहीं फेमिलियर होते, वी बीइंग द पार्टिसिपेंट्स वर फेमिलियर विद दैट एज वेल. तो वो जो हमने उसको जिस तरीके से रिसर्च करके एक्सप्लोर किया, दैट गेव अस एन एज, अ लॉट ऑफ एज एक्चुअली. Do you think these competitions differ in a sense कि इनसे students की growth में extra कोई हो सकती है? Yes, obviously it is, because कि जो law है ना that varies. अगर CLDP and Viz, if they want you to learn ADR, obviously that's something that you're not conventionally learning. If through HDMC, ICRC is making you learn war crimes, law, humanity, तो obviously वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें जो आप subjects wise नहीं पढ़े होते.
जैसब में आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पढ़े, जैसब तो खैर इज़ वेरी वाइड, वेरी वास्ट इन टर्म्स ऑफ कि उसमें जो टॉपिक्स इनकम्पस्ड होते हैं, लेकिन इन जनरल अ नॉर्मल स्टूडेंट एंड अ मूटी दे बोथ हैव लाइक एन एज इन अ वे कि दे एक्सपीरियंस एंड लर्न अनदर लॉ, और सिर्फ वो आप लर्न नहीं कर रहे होते, उसके अलावा जो एक्सपोजर आपको मिल रहा होता है, द लीगल ड्राफ्टिंग के एक्सपोजर, द ओरल प्लीडिंग्स के एक्सपोजर, एंड दैट्स व्हाट्स नीडेड इन अ लॉयर ऑल टुगेदर. तो आप you're slightly ahead of all those things कि जब आप वो कोर्स में पढ़ रहे होते हो तो आपको पहले से पता होता है कि मेमो ड्राफ्ट करने हैं, डूज डोंट्स क्या हैं, ओरल प्लीडिंग्स करनी है, किस चीज़ से मुझे एज मिलेगा ओवर द अदर पर्सन. तो वो जो लूप होल्स होते हैं और वो जो सब चीज़ें होती हैं उनसे आप फेमिलियराइज हो चुके होते हो बिकॉज आपने पहले ही इतना टाइम दिया होता है सब चीज़ को. सो आई थिंक दैट डज गिव यू एन एज. To wrap it up, what advices would you give to the law students who want to like pursue moot court competitions, or like ऐसी क्या advices और tips हैं जो आप देना चाहोगे उनको? आई थिंक सबसे पहला प्रोसेस तो होता है ना कि व्हेन यू आर मेकिंग अ टीम एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग, तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर आप जब एक टीम फॉर्म कर रहे हो, फॉर द टीम फॉर्मेशन मेक श्योर कि यू वर्किंग विद द पीपल यू आर कंफर्टेबल विद एंड यू आर हैप्पीली वर्किंग विद. ठीक है, बिकॉज आपने 4 5 6 मतलब जितना भी टाइम पीरियड आपने काम करना है, 8 months एज वेल, हमने जैसे विस के लिए किया, तो आपने उन सब लोगों के साथ काम करना है जिसमें आप बाज़ बार यूर थ्रोइंग टैंट्रम्स, बाज़ बार यूर सो फ्रस्ट्रेटेड, सो ड्रेन्ड, एंड आपने टीम वर्क करना होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो. कभी आपने रिसर्च में हेल्प कर दी, कभी ड्राफ्टिंग में हेल्प कर दी, ओरल्स में हेल्प कर दी. सो आई थिंक टीम सिलेक्शन से आप स्टार्ट करें तो बी विद द पीपल यू कैन एक्चुअली टॉलरेट फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स सॉरी. तो टीम बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, make some good combinations in terms of कि you have a person who is good in research, because not everyone can be good in everything. The right person for the right job in a proper team. उसके अलावा just never doubt yourself. I know कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो skeptical होते हैं कि अप्लाई नहीं करना, या हम चांस ही नहीं देंगे, हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाए, वो हो जाए तो ये हो जाए. No, just don't apprehend. If it's gonna work out for you, it will. And thirdly, I think it's very important to be mentally secure. हमारा एज अ कॉम आई थिंक ये मसला है, एक नेशनल मसला है, कौमी मसला है. मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं. हमसे ऊपर कोई जा रहा हो, हमसे आगे कोई जा रहा हो, हमसे बेहतर कोई कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि यार या मैं हूँ या इसको हटाओ, ठीक है, और मैं क्यों नहीं. सो व्हेन यू ब्रिंग दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, आप इनसिक्योर हो जाते हो. और जब आप इनसिक्योर हो जाते हो आपकी इंटेंशन बहुत ख़राब हो जाती है. जब आपकी नीयत ख़राब हो जाती है ना, तो आपको जो सही चीज़ होती है बाज़ दफ़ा वो भी नहीं मिलती. मैंने कई दफ़ा नोटिस किया कि समवन लाइक एक्सेप्शनली गुड बट they're not getting anything in the end. And कुछ लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी होंगे but they end up like being to the places where आपको लगता है कि यार ये यहाँ कहाँ पहुँच गए. So I think it's your good intent कि आपने अच्छा करना है और ऑनेस्टी के साथ करना है. अच्छा don't get in, अच्छा होगा. yes, बिल्कुल 110%. don't get in any kind of rat race कि यार मैं अगर ऐसे 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 कैलकुलेट करूँ, और वो जो सियासी हरकतें आप कर रहे होते हैं ना कि इसको मैं इधर बिलिटल कर दूँ और इसको मैं यहाँ पे इफ़ आई गेट दीज ब्राउनी पॉइंट्स तो मे बी ये थोड़ा लेट डाउन हो जाए और आई गेट द एज और आई गेट द चांस. नो, व्हाट इज एक्चुअली रिटन फॉर यू इज रिटन फॉर यू. व्हाट्स गोना हैपन फॉर यू, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल ऑलवेज बी योर्स. तो हमारा एक तो थोड़ा सा लॉ और सियासत, लॉ एंड पॉलिटिक्स है भी इंटरकनेक्टेड, और हमारे दिमाग भी थोड़े से उस तरह ट्रेन होना शुरू हो जाते हैं कि हम रीजनिंग एंड वो सारी चीज़ें. तो इस तरह की हरकतें इतनी नेक्स्ट लेवल नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से. आपको बहुत सिक्योरली ऑनेस्टी के साथ अच्छे तरीके से प्ले करना चाहिए एंड विद इन टीम बहुत अच्छे डायनामिक्स रखने चाहिए. उसके बाद रिसर्च भी हो जाती है, तैयारी भी हो जाती है, बिकॉज आप जब स्पेशली वक्त दे रहे होते हो, आपको प्रेशर होता है या आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, एंड रिजल्ट आपको कोई चाहिए होता है, तो आप नेचुरली यू टेंड टू वर्क हार्ड. और आई थिंक अपनी टीम में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर इंसान के रोल्स डिसाइड करें और उनको करने दें उनकी जॉब, और एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को हेल्प ईच अदर ग्रो rather than putting anyone down. Yes. So I think that's the key. Yeah, that's the key. आप किसी को हेल्प आउट करो ताकि वो भी इस चीज़ में एक्सेल हो. किसी की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, because in the end it's all in Allah Ta'ala's hand. ठीक है, अल्लाह ताला ने कहना हो जाए एंड वो चीज़ हो जाएगी. So जो आपकी है वो आपकी रहेगी, उसको अच्छी तरीके से हासिल करने की कोशिश करें. दूसरों से मुआवजा, कंपैरिजन, ये सब चीज़ें ना करें, because that's not gonna work out for you in the longer run. So I think एक बहुत significant चीज़ है that we need to inculcate in ourselves our own mindsets, क्योंकि हमारे mindsets में नहीं होती और फिर हमें नुकसान भी देती है. लेकिन yes. Thank you very much, Hadiya. Thank you very much. Welcome. I must say the whole conversation was like very informative and inspiring too. और I hope ये listeners के लिए भी बहुत inspiring होगी. Thank you again. We hope that they learn from it and they were able to like
do something excited good to out of take it. part in like Yeah, moot they court get in those competitions. moot court competitions. They take part in Vis, Jessup, HDMC. They do national moots as Exactly. well. So like I'm glad. Okay, आपने मुझे बुलाया. You gave me this opportunity You're to such talk. you're such a pretty person. ठीक Thank है, you so in much. a sense, like Yeah. जिस तरह आप चीज़ें explain करते हो. And there you have it. Another captivating episodes comes to an end. And I hope ये episode जो थी तमाम law students के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी. And that's it. Do subscribe to the YouTube channel. Comment, share, subscribe, follow on Instagram, subscribe on YouTube. Keep on liking, keep on commenting. Share it with your friends. Do all this. Yeah, sure. Looking Stay forward to your tuned. feedback. Allah Hafiz.